into the word. Let's turn our Bibles to the book of Mark chapter 2 please. और चलिए अपना बाइबल में निकालेंगे इसको मैं मरकुस का दूसरा अध्याय And verse 1. And again Jesus entered Capernaum after some days. और वचन में लिखा है फिर से इसके बाद यीशु कुछ दिनों के बाद कफरनहूम में आए. You see, Capernaum was the headquarters of Jesus' ministry. आप देखते हैं यीशु की सेवकाई का जो हेडक्वार्टर हुआ करता था कफरनहूम. Jesus was from Galilee, और यीशु गलील से थे. but he shifted from that Galilee to Capernaum. लेकिन उन्होंने देखिए अपने सेवकाई को जो है गलील से कफरनहूम में वहां ले गए. You know, when we went to Israel, देखिए जब हम गए थे इजराइल I explained this point और इस जगह को बताया गया था that Capernaum was a commerce, a location where highways would intersect and many people would move around that place. और कफरनहूम ऐसी जगह पे थे जहां पर देखते कि महामार्ग आकर जुड़ता है और बहुत सारे लोग उसी इलाके. The next one. चलिए अगला Let's go to the second point. जाते दूसरे मुद्दे पर. And it was heard that Jesus was in the house. और फिर सुना गया कि यीशु घर में है. It was heard that Jesus was in the house. और देखिए सुना गया कि यीशु घर में है. The first thing I want to bring out this morning, Romans 10:17 says, रोमी के पति 10वां अध्याय 17वां वचन कहता है faith comes by hearing विश्वास सुनने से आता है and hearing by the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनने से आता How है. many of you say amen to that? किधर कहते हैं आमीन इसके लिए. Hallelujah. हालेलुया. The Bible says they heard. बाइबल कहती है कि उन्होंने सुना. They heard that Jesus was in the house. उन्होंने सुना कि यीशु उस घर में आए थे. What did they hear? और उन्होंने क्या सुना. They heard that look, the presence of Jesus is in the house. और उन्होंने सुना कि देखो यीशु की उपस्थिति उस घर में है. They heard because someone was telling. उन्होंने सुना क्योंकि किसी ने तो उनको बताया. Look at somebody and say, you don't tell anyone. और किसी को देखकर कहे आप किसी को बताते नहीं हैं. You see, the traditional model of Christianity is this. और देखिए आज के आधुनिक जमाने का परंपरावादी मसीहत ये है. I said traditional. Everyone said traditional model. पारंपरिक परंपरावादी. Come on, say it after me. Traditional model. The traditional model is I go to church and that's enough. और पारंपरिक नमूना यह है कि मैं कलीसिया में जाता हूं इतना ही काफी है. I don't tell anyone. मैं किसी को कुछ नहीं बताता. I just wave out to people मैं बस लोगों की ओर ऐसे हाथ दिखाता हूं and I go to church. और बस कलीसिया में जाता हूं. Who cares? किसे परवाह है. Hello, how many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त. This is the traditional model of Christianity. For many years, I went to church, but I never took anybody to church. और कलीसिया का देखिए यही तो एक पारंपरिक नमूना है. कई सालों से मैं कलीसिया में जाता था लेकिन मैं कभी किसी को कलीसिया लेकर नहीं गया. This is what it is. और ऐसा ही है ये. It was heard that Jesus was in the house. If it was heard, that means somebody was telling. और ये सुना गया कि यीशु घर में है. अगर सुना गया तो इसका मतलब है कोई तो वहां पे आके बताया. When I was born again, जब पासवान जी का नया जन्म हुआ था my pastor was a truck driver. He was a very poor man, और इनके जो पासवान थे वो एक ट्रक ड्राइवर थे. बड़े गरीब थे, very honest man. बड़े ईमानदार व्यक्ति. But here was the thing. लेकिन सुनिए Whenever he would tell me something, जब कभी of course not me, he to tell the church. जब कभी वे कलीसिया से कुछ कहते थे. It was a small church एक छोटी कलीसिया थी in attendance. I would go and do it. और जाकर करते थे. How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं इस वक्त. I was crazy. एकदम सन की थी इस बात के लिए. Still am. अभी भी है. Yesterday we were at Airoli and there were stones. There was police on the dais. Still continued preaching the word. फिर भी वचन का प्रचार कर रहे थे. I told you I was crazy. आपको बताया कि एकदम सन की थे. Because sensing something in the spirit. I क्योंकि didn't want आत्मा to में tell कुछ you. तो ऐसा आभास इनको हो रहा था. I prayed, but I was sensing something in the spirit. और देखिए प्रार्थना तो कर रहे थे लेकिन फिर भी आत्मा में कुछ आभास हो रहा था. Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें it was heard. ये सुना गया. You see, many Christians today, they don't speak. If they get some gossipy, juicy nugget about some pastor, they will forward, praise the Lord, just keep praying. So they will forward it. Actually, they don't want to pray. They just want to publish it. Just बात करने के लिए कुछ मिलता है ना. इसका ऐसा लफड़ा हुआ. क्या हो गया? See, we want all this masala stuff, but we never forward testimonies. We never forward something that is related to God. We never call up people and say,
I'm going to church. I've got 2 seats in my car. Can you come to church? और देखिए कभी हम किसी को कॉल करके ये नहीं बताते कि देखो मैं कलीसिया में जा रहा हूं और मेरे कार में जो 2 सीट खाली है, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे कलीसिया में? I want to tell the young people, नौजवान लोगों से कहना चाहते हैं, what about you? आपके बारे में क्या? Whom have you brought to church? किसको आप कलीसिया में लाए हैं? Think about it. सोचिए इस बारे में। Oh, I just serve in the church. I've just come to meet Harry. Really? ओ मैं बस कलीसिया में सेवा करती हूँ, मैं बस हैरी को मिलने आई हूँ। Harry. Christmas is coming. I feel a lot of love for Harry. Harry. That's how it works. ऐसे ये काम करता है। We come to church to meet someone, but we never bring someone to meet Jesus. हम कलीसिया में थे किसी से मिलने के लिए, लेकिन किसी और को हम नहीं लाते यीशु से मुलाकात करने को। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You see, the people in Jerusalem, in Israel, they were telling, hey, look, Jesus is in the house, Jesus in that house, Jesus in that house, Jesus in that house. Someone was telling, look at somebody and say, someone was telling. और देखिए वहां के लोग दूसरों को बता रहे थे कि देखो यीशु घर में आए, यीशु घर में आए, यीशु के घर में आए हैं। Praise the Lord. चलो Hallelujah. Look at somebody and say, no one will hear unless you tell. किसी को देकर कहें कोई तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप उन्हें बताते नहीं। Church, I want you to be a church that is a speaking church. It's a telling church. You know, one of the carols we used to say, go and tell it on the mountain. Forget the mountain. You don't tell in your gully also, man. और चाहते हैं कि ऐसी कलीसिया हो जो दूसरों को Go बताए, and tell बोलने it वाली on the कलीसिया बने। mountains. What mountains? तुम्हारे गली में नहीं तुम बोलते हो यार. Is anybody listening over here? अगर सुन रहे हैं यहाँ पर, पहले मैं काटता हूं. और बाद में यीशु मलहम लगाता है ना. Look at somebody and say, no one will hear until you tell. जब तक आप किसी को बताते नहीं तब तक वो सुनेंगे नहीं। And what is the effect of that? और इसका प्रभाव क्या पड़ा? Verse 2, go there. दूसरा वचन देखिए। I'm on my second point. So let's go systematically. तो व्यवस्थित तौर पे जाएंगे। दूसरे मुद्दे पर हैं। Immediately, many gathered together so that there was no room enough to receive them, not even near the door. You see, this is how we reach out to people. और देखिए वचन में लिखा है फिर तुरंत ही इतने लोग इकट्ठा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह नहीं थी। देखिए यही तरीका है लोगों तक पहुंचने के लिए। पैम्फलेट बांटने से लोग नहीं आते. किधर सुन रहे हैं मैं क्या? There is, listen, अगर अभी AI है, YouTube है, Facebook है, तो भी हम इवेंजलाइज नहीं कर पाए क्योंकि there is something that is in the human element. जब हम किसी को मुंह खोलकर बोलते हैं, वो आत्मा बात करती है उसकी आत्मा से. नहीं तो सर हमारी क्या जरूरत पड़ेगी सर? हमसे अच्छा तो ये AI बात करता है, हमसे अच्छा तो AI लिखता है, हमसे अच्छा तो AI गाता है, फिर हमारी क्या जरूरत है? सर जरूरत है. हमारी आत्मा से हम जब बोलते हैं ना, वचन को बोलते हैं ना, तो उनकी आत्मा के अंदर घुस जाता है वो. इसीलिए आप बोलें किसको? बोलें. और एक दिन वो गवाही आएगी कि सर आपने मुझे बताया था, मैं खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन आपके रिक्शा रोककर मुझे बता दिया कि भाई कहां जा रहे हो, आ जाओ बैठो. और मेरे पैर बदल गए, पैर की दिशा बदल गई. Tell your neighbor and say, अपने पड़ोसी को बोलिए, speak. बोलिए। No. कितना डर लगता है ना, speak. I tell you how I got saved and I moved to my third point. Listen to me. अब बताते हैं कि कैसे इनका उद्धार हुआ। फिर तीसरे You मुद्दे पर see, जाएंगे, सुने। I was walking once on the road from Vidya Vihar to Kurla. और एक बार ऐसा हुआ कि विद्या विहार से कुर्ला की ओर पासवान जी सड़क पे आ रहे थे। I was walking चलते हुए and I was deciding that this evening I'm going to commit suicide. और इन्होंने ऐसा फैसला लिया था कि आज की शाम मैं खुदकुशी करने वाला And हूँ। one young boy comes over there और एक नौजवान लड़का वहां आता है and says, hello. और आकर कहता है हेलो। He was from my area. इनके ये कहते हैं He saying, आप अच्छा गिटार बजाते ना, बैंड में बजाते ना? बोला हाँ. थोड़ा घमंड ही था, पैसे जेब में नहीं, घमंड ज्यादा है ना. आप लोग बहुत अच्छे लोग. हाँ बजाना बोल. I didn't like to speak. घमंड ज्यादा है, जेब में दमड़ी नहीं. Yeah, that's how. And he says, आप हमारे प्रेयर ग्रुप में आ सकते. He didn't tell me church. Okay. कली से ऐसा नहीं कहा उसने। गिटार बजाने के लिए. Something inside me said,
कुछ तो अंदर से आवाज आई, You're going to die तुम मरने वाले हो tonight. आज रात। So once you play for Jesus, तो एक बार तुम यीशु के लिए भी कुछ बजा दो, चलो। so now here I'm responding to that voice. देखिए अब उस आवाज के लिए प्रत्युत्तर दे रहे हैं। Okay, and I'm looking at the sky, okay? And आसमान की ओर देखकर कह रहे हैं, okay, I'll play for you once. ठीक है एक बार मैं तुम्हारे बजाऊंगा। What a proud fellow. So I take my guitar तो इन्होंने अपना गिटार लिए and I go over there. और पहुंचे वहां पे। And that's another story. और ये अगली कहानी फिर। What if that boy would not invite me? क्या होता अगर उस लड़के ने इनको आमंत्रित नहीं किया I would होता? be 6 feet under one cross over there and somebody would be crying. And nowadays nobody cries. 6 गज जमीन के नीचे कोई होते नहीं हैं, वहां रोता पर यार. कोई बेचारे कुत्ते आके सूंघ के जाएंगे. Doggies are more faithful, you know. कोई नहीं पूछता है यार. जब तुम when you're down, जब आप नीचे होते हैं nobody asks you. कोई नहीं पूछता आपको। Very few people will ask you. बहुत ही कम लोग हैं जो आपके बारे में Can पूछेंगे। you be that person? और देखिए आप वो व्यक्ति बने। I was out with my family for 3 days. पासवान जी 3 दिनों के लिए अपने परिवार के साथ बाहर गए थे। And there was a waitress serving us. और वहां पर एक वेटर जो सेवा डेल कर रही थी। I looked at her. इन्होंने क्यों देखे? I said, tough job, right? बड़ा मुश्किल काम है ना ये। She put her head down. उन्होंने अपने सिर को नीचे किए। I said, what to do, sir? फिर वो कहने लगी, सर You क्या? see, there are people in pain, but you're not ready to talk. और देखिए ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो दर्द में है लेकिन आप तैयार नहीं है बोलने के लिए। क्योंकि हमें सिर्फ अपनी चिंता है. बोले, यहाँ हाथ लगा थोड़ा सा. यहाँ भी लगा. और टाइम है तो यहाँ भी लगा. मसाज पार्लर है क्या भाई? इधर उधर हाथ लगाओ. No, really, this is what we want. और यही तो हमें Pray चाहिए for होता my है। cat, pray for my dog, pray for my children. Now don't ask me who's the cat and dog in your house. अब ये मत पूछना आपके घर में के कुत्ते बिल्ली कौन है। Go look at somebody and say, अगर तू नहीं बोलेगा, किसी को देखकर कहें, कोई तो यीशु के बिना मरेगा. That is, listen, sir. सुनिए। Listen what I'm telling you. Listen. That's why I preach the gospel. इससे सुसमाचार का प्रचार करते हैं। Titles mean nothing. मैं रास्ते का preacher था. I was on the road. This stage, and you put me on the road, still I'll preach over there. अगर आप इनको सड़क पे रखते हैं वहां पर भी प्रचार You करें। guys need lights, sound, this, that. You need it. I don't. Can I go to the third point? ये जा सकते हैं तीसरे मुद्दे पर। Look at what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है। Now, because they spoke, और क्योंकि उन्होंने बोला, what if everybody in the church was an evangelizing Christian? क्या होगा अगर हर एक मसीह जो कलीसिया में का है दूसरों को बताने वाला मसीह बने। Think about it. सोचिए इस बारे में। There are certain segments of society where I cannot reach, but you can. और देखिए समाज का एक ऐसा समुदाय है जहां तक पासवान जी नहीं पहुंच सकते लेकिन आप पहुंच सकते हैं। For example, उदाहरण के रूप में, example. Maybe you're in the film industry. मान लीजिए आप फिल्म इंडस्ट्री में, I don't have access to the film industry, पासवान जी की पहुंच नहीं है वहां तक, but you have. लेकिन आप Maybe you're in the medical industry. आप मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, You have access to that industry, आपकी पहुंच है उस इंडस्ट्री तक, but I don't. लेकिन इनकी नहीं। You're in the other industries, आप दूसरे किसी इंडस्ट्री में हैं। airline industry. So if each of us reach those places, Jesus will have access to those places. अगर हम सभी अपने उन जगहों तक पहुंचे तो यीशु की भी पहुंच मिल जाएगी वहां तक पहुंचने के लिए। Somebody say, Lord, I received this word. Can I share with you how to speak? क्या आपको बता सकते हैं कैसे बोलना होता है? There will be triggers. और देखिए से ट्रिगर होते हैं। They will ask you, वे आपसे पूछेंगे कहाँ जाता है तू Sunday? रविवार को। That is the Holy Spirit. सामने से पूछेंगे, किधर जा रहे कल? That is a trigger. यही तो है ट्रिगर। Look at somebody say, तू सुनता नहीं, किसी को देखकर कहे आप सुनते नहीं हैं। तू सुनता नहीं है, तू WhatsApp ज्यादा, सामने से पूछेंगे, तो कल क्या कर रहा है? These are triggers. ये सब ट्रिगर है। बोले बहुत बड़े जगह पे जा रहा हूं. बोले कहाँ यार? बोले सुबह वॉक के लिए जाएंगे, वॉक के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे. वाह. Tell your neighbor, you have to listen. अपने पड़ोसी को बोलिए आपको सुनने की जरूरत है। Don't just say चर्च में जाएंगे 4 घंटे बैठेंगे, नहीं सर. Anyway, Yeah. is anybody listening today? क्या कोई सुन रहे हैं? I pray the Holy. You know why you are so silent?
आप जानते हैं आप क्यों खामोश हैं? Because you know what you this thing is from the Holy Spirit. क्योंकि आप जानते हैं कि ये चीज सिर्फ पवित्र आत्मा की ओर से आ रही है। Praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। And please don't talk to your family, talk to your friends, because your family will not come, but your friends will come. इसलिए अपने परिवार से मत बात करो, लेकिन आपके दोस्तों से बात करो, क्योंकि परिवार तो नहीं आएंगे लेकिन दोस्त जरूर आएंगे। Then pastor, what about my family? तो पास्टर जी मेरे परिवार के बारे में क्या? Somebody else will bring them. कोई और उनको लेकर आएगा। How many of you listening right now? किधर सुन रहे हैं इस मेरा वक्त? family, मेरा family, मेरा family. अरे तू दूसरे के family के लिए touch कर, खुदा तेरे family को touch करेगा. Receive this word now. ले This लीजिए is a इस वचन को इस prophetic word. Is anybody listening over here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Now you have come alive. हाँ बोले मेरे को कुछ मिल रहा है अभी. हाँ. Always it's about what you can get. Huh? हमेशा क्या मिल सकता है Let me go to आपको? point number 3. चलिए जाते हैं तीसरे मुद्दे पर। You see, when the people were gathered, point number 3, write it down, please. और तीसरा मुद्दा देखिए, जब लोग इकट्ठा हुए, Let me go systematically. चलिए जाते हैं व्यवस्थित तौर पे। Open your Bibles. अपना बाइबल खोलिए। Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है? He preached the word to them. तब यीशु ने उन्हें वचन को प्रचार किया। Look at somebody again and say, He preached the word to them. यीशु ने उन्हें वचन प्रचार किया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, I spoke yesterday. कल इन्होंने कहा, Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed because of the lack of knowledge. होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन के अनुसार कि मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो जाते हैं ज्ञान की कमी की वजह से। People don't know the word of God. लोग परमेश्वर का वचन नहीं जानते। Jesus preached the word. यीशु ने वचन को प्रचार किया। He taught them the word. उन्हें उसने वचन को सिखाया। And many Christians ignore the word of God. और बहुत सारे मसीह लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं। Isaiah chapter 5 says, यशायाह की पुस्तक 5वां अध्याय कहता है, My people, today I have to bring all my memory, into play. Wow. Isaiah chapter 5 says, यशायाह का 5वां अध्याय कहता है, He says, My people have gone into captivity मेरे लोग जो है बंधुआई गुलामी में चले गए because of the lack of knowledge. क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी है। My honorable men are famished. और मेरे प्रतिष्ठित लोग जो है भूखे मरते हैं। Hello, are you with me? Yes. How can God's people go into bondage? How can God's people be destroyed? मेरा नाम तो Michael है. तेरा नाम क्या है? Mary. Oh, Mary. Destroyed. नाश होते हैं। Yes. What's your name? Paul. Oh, Paul. क्या नाम है तुम्हारा? पॉल। Destroyed. नाश। Because there is no word. क्योंकि उनके पास वचन नहीं है। चर्च में बैठते हैं, हाथ में मोबाइल तो है लेकिन व्हाट्सएप खुला है. No word. कोई वचन नहीं। Look at two people and say, let's go for the word. दो लोगों की ओर देखकर कहे चलो वचन में जाते हैं। Never sit in front of me. At least, please मैं किसी की तरफदारी नहीं करता हूं. Many people criticize me. I'm too strict. That's fine. बहुत सारे उनकी I'm निंदा not, करते कि I'm बहुत not सख्त है। standing for elections anyway, so you don't have to vote for me. Go for the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए जाएं। Look at somebody say, Jesus preached the word. किसी को देखकर कहें यीशु ने वचन का प्रचार किया। Before he did any miracles, before he did any signs, wonders, prophetic, he preached the word. Raise your hand and say the word of God. इससे पहले कि वो भी कोई चिन्ह चमत्कार चंगाई आशगम करते भविष्यवाणी करते उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। Hallelujah. हालेलुया। क्योंकि word of God जो है फाउंडेशन है. जोर से बोलिए word of God foundation. बोले परमेश्वर का वचन बुनियाद है। बुनियाद है जिस चीज पर तुम सब कुछ बांध सकते हो. अगर ये वचन अगर तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, अगर इस वचन को तुम नजरअंदाज करते हो, सर, whatever you receive on the sand will be washed away. जो कुछ भी देखिए आप खड़ा करते हैं उस मिट्टी पर या रेत पर सब कुछ बह जाएगा, ढल जाएगा। आपको हीलिंग मिलेगा, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड नहीं है तो हीलिंग बह जाएगा. आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगी, बोले मेरे पैसे छूट गए, मेरे ऐसा हुआ, मेरे वैसा हुआ, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड फाउंडेशन बुनियाद नहीं है तो वो पैसा बह जाएगा, घमंड आएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा और वो बह जाएगा. सर, आई वांट टू वार्न यू. देखिए आपको चेतावनी देना चाहते हैं, गेट द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के वचन को ले लीजिए। एवरी डे इन द मॉर्निंग, हर दिन सुबह स्टार्ट योर डे विद द वर्ड. अपने दिन की शुरुआत करो वचन के साथ। यू कैन हैव अ कॉफी और अ टी. चाहे तो आप चाय कॉफी ले सकते हैं, जस्ट गो फॉर द वर्ड. पहले वचन के लिए Just sit and enjoy the word. बस बैठो और वचन का लुत्फ उठाओ। I'm telling you, it will change your mindset. It will change your life. मैं बताना चाहती हूँ ये आपकी मानसिकता को बदल देगी, ये आपकी जिंदगी बदल देगी। Somebody say, I receive this word. कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Before you sleep,
आपके सोने से पहले। Oh, is this blessing you this morning? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है सुबह? Before you sleep, don't stop your day with Shah Rukh Khan bhai, just dancing, You end your day with the word. आप अपने दिन को खत्म करो वचन के साथ। God will speak to you in dreams and visions. परमेश्वर स्वप्न दर्शनों में आपसे बात करेगा। He will give you interpretation also of the dream that you have received. और Hey! जो स्वप्न आपने पाया है उसका अर्थ भी वो आपको बताएगा। What mysteries were hidden, God will reveal them to you through the word. Hallelujah. जो भेद जो रहस्य Yes. छिपे हुए हैं परमेश्वर अपने वचन के जरिए आप पर जाहिर करेगा। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? This is how it works. ऐसे ये काम करता है। Look at somebody and say, the word in your spirit. किसी को देख कर कहे वचन आपकी आत्मा में। Hallelujah. हालेलुया। शैतान सुनिए सर, मैं हमेशा बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। शैतान तुम्हारे पैसे चुराने से पहले वचन को चुराएगा। शैतान तुम्हारे शादी को चुराने से पहले वचन को चुराएगा। He steals the word. वो वचन को चुराता है। Pastor, I lost my job. No, before that he stole the word. पास्टर जी मेरी नौकरी चली गई। नहीं, वो नौकरी चुराने से पहले उसने वचन को Can चुराया। I share with you a secret? क्या आपसे एक रहस्य बांट सकते हैं? Can I share with you a secret? Never forget this. कभी भूलना नहीं है। This is live from the Holy Spirit. Prophetic word, receive it now. ये सीधे पवित्र आत्मा Here's की it. ओर से आ रहा भविष्यता वचन Here's ग्रहण it. कर लो। The Bible says, बाइबल कहती है God upholds everything in this universe by His word. परमेश्वर इस ब्रह्मांड के सारी चीजों को अपने वचन के द्वारा संभालता The है। sun is in His place because He holds it by the word. सूर्य Hallelujah. अपने जगह पर टिका हुआ है क्योंकि उसने वचन के द्वारा उसे संभाले रखा The है। sea is in its place because He says, you shall come this far and no more. Hey! समंदर अपने जगह पर टिका हुआ है That's क्योंकि in the परमेश्वर Bible. ने कहा तुम इसी सीमा तक आओगे, इसके आगे नहीं। Everything is held in its place by the word. हर एक चीज को जो है उसके जगह पर रखा गया वचन के द्वारा। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते When हैं? that same word comes into your spirit, जब वही वचन आपकी आत्मा में आता है, Satan cannot touch your finances. शैतान आपके पैसों को छू नहीं सकेगा। Satan cannot touch your marriage. शैतान आपकी शादी को छू नहीं I सकेगा। challenge you. सुरक्षित देते Go हैं। for the word. वचन में जाए। There will be a restoration in your life. आपकी जिंदगी में पुनः स्थापना आ जाएगा। जो तुमने खोया है 7 गुना तुम्हें वापस लौटाया जाएगा. Receive right now. ले लीजिए इस समय। क्योंकि तुम्हारी बातें हमारी होशियारी उन चीजों को पकड़ कर नहीं रखती सर, उसका वचन पकड़ कर रखता है। बोले मैं अंग्रेजी में बात करता हूं। अरे तेरे जैसे अंग्रेजी वाले लोग घूम रहे हैं बाहर, वड़ा पाव बेच रहे हैं। वड़ा पाव बेचना गलत नहीं है। हम सोचते हमारी होशियारी, हाय द स्वैग, हाय तू कितना भी हिल, कुछ नहीं होने वाला तेरा सर, क्योंकि ये सारी चीजें आत्मिक चीजें हैं। ये आत्मिक चीजें सर, आत्मिक चीजें हैं। 300 लोग लाइन में खड़े हैं, तू कौन सा है रे लल्लू? वही नौकरी के लिए 300 लोग खड़े हैं, लेकिन खुदा की दया है कि बोलते हैं सर उसको बुलाओ। ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। खुदा का वचन सच है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया इस वक्त। हालेलुया इस समय। Are you listening this morning? आप सुन रहे हैं इस समय? Don't ignore the word. वचन को नजरअंदाज मत God's करो। word says, वचन कहता है मेरे लोग नाश हो गए। मेरे लोग, दुनिया की बात नहीं कर रहा प्रभु, मेरे लोग नाश हो गए। मेरे लोग क्यों? वचन नहीं है सर, वचन नहीं है। इतना इतना चुटकुला सब पढ़ते हैं, एक चम्मच राइस खाते हैं। Today, do you have the word? आज क्या आपके पास वचन है? Come on, look at somebody and say, do you have the word? बहुत जरूरी है। I want to tell the youngsters, नौजवानों से कहना चाहते हैं start digesting the word. वचन को देखिए अपने अंदर लेना शुरू करें। बोलेगा क्या, मैं तो पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। सर आपको पता नहीं, जब वचन तुम्हारी आत्मा में घुसेगा ना, it will start producing. Isaiah 55 यशायाह का अध्याय verse 55 10 and 11 10वां 11वां वचन says, my word that was sent forth shall not return to me void, but it shall accomplish what it was sent for, and it shall bear fruit in the things that it was sent for, in the name of Jesus. जो वचन मेरा भेजा जाता है वो व्यर्थ नहीं लौटेगा, लेकिन जिस काम के लिए उसे भेजा गया वो उसे पूरा जरूर करेगा। Is anybody listening over here? क्या सुन रहे हैं यहाँ पर? Either you say, God, you are a liar, या तो आप कहेंगे कि परमेश्वर तू झूठा है, or otherwise you say you never went for the word. या फिर आप ये दो ही चीजें हैं। मान लेंगे कि आप कभी वचन पे गए नहीं। यही दो चीजें हैं। Try it out. आजमा कर देखें।
Jesus preached the word. या तो यीशु मसीह टाइम पास कर रहा था या तो उसमें कुछ दम है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं वचन थे और बोले मैं आ गया हूं भाई, वचन की जरूरत नहीं है. I'm the word, so you don't need the word. मैं खुद वचन हूं तो तुम्हें वचन की जरूरत नहीं. No, Jesus was there. नहीं नहीं, यीशु वहां पे But मौजूद थे. Jesus needed that thing to get into their spirit. लेकिन यीशु खुद चाहते थे Get कि वो this, चीज please उनकी आत्मा में understand what समा I'm जाए. saying. How many understand right now? Presence of God. Jesus was in the house. Presence of God is there. और यीशु उस घर में थे, प्रभु की उपस्थिति उस घर में मौजूद But थी. the word had to go inside. लेकिन Oh, वचन now को you're लोगों understanding. के अंदर जाने की जरूरत थी. बोले यीशु मसीह स्वयं वहां पर है तो वचन की क्या जरूरत है? How many understanding this? क्यों समझ रहे हैं इस वक्त? Is it understandable to you? या आपके लिए This समझ is में है? deep stuff. गहराई की चीज है. Hello, can I speak it again? Jesus, यीशु मसीह घर में थे, मौजूद थे, स्वयं यीशु मसीह थे, फिर भी, और यीशु मसीह वचन है, फिर भी उन्होंने वचन प्रचार किया. क्यों? यीशु मौजूद हो सकते हैं, यहां पर हैं, लेकिन वचन की सेवकाई, वचन आपके शरीर में, आपकी आत्मा में घुसना जरूरी है. How many understand right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त? Lift your hand and say, आज के बाद, अपने हाथ उठा करके आज के बाद, from today onwards, आज के दिन से I will bring my Bible to church. मैं कलीसिया में अपने बाइबल लेकर आऊंगा. I will read my Bible every day. हर दिन मैं अपनी बाइबल पढ़ूंगा. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Even at the airport, चाहे एयरपोर्ट हो, I will not refresh my feet 1,000 times. किसको impress कर रहा है? तो कुछ नहीं आया. खाली फुकट. कुछ नहीं आता, फिर भी डालते. Everyone say, Jesus preached the word. चलो कहे, यीशु ने वचन का प्रचार किया. This is blessing you this morning. मैं आपको आशीष पहुंचा रही सुबह. So there are three things we saw now. तो तीन चीजें हमने देखे अभी. What is the first one? पहला क्या है? Look at somebody and say, go and tell. What? Go and tell. I want the youth, gather your friends for Christmas. जो नौजवान लोग हैं, क्रिसमस के लिए अपने दोस्तों को इकट्ठा करो. Call them at home. घर में बुलाओ. Give them whatever, karanji, chakli. करंजी, चकली जो भी आप दे सकते हैं. क्यों है? क्या गलत है? There is no Christian food. और कोई ऐसा क्रिश्चियन There is no Christian vada pav. खाना खाना होता है भाई. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी खाना को bless करो, डाल दो अंदर यीशु के नाम से. Hello. Yes. Call them उनको बुलाएं. and just tell them बस उनसे कहना how your life changed. आपकी जिंदगी कैसे बदल गई. Come on, young people. नौजवान लोगों, Don't say, we're going for a dance, you can go later. Nothing wrong. But you share with the gospel लेकिन first. आप सुसमाचार को बांटें. Otherwise, God will say, you never told. नहीं तो आप परमेश्वर कहेगा आपने कभी किसी को बताया. First one, go and tell. पहला है जाकर बताओ. Come on, everybody say, go and tell. सब लोग कहे जाकर बताओ. Come on, loudly say, go and tell. Is anybody listening over here? The second one, he preached the word. Everyone say, he preached the word. दूसरा, The उसने first one वचन was का about प्रचार. Capernaum, that you can put it as introduction. Go and tell. Second, he preached the word. And I shared with you the importance of the word of God. उसने वचन का प्रचार किया. फिर आप कहीं भी बताया कि वचन की अहमियत क्या है. Now read verse 3. Then they came to him bringing a paralytic man. वचन में लिखा और लोग एक लकवे के रोगी को उसके पास ले आए. The Holy Spirit put it there for a reason. ध्यान से सुने इस वक्त. देखिए पवित्र आत्मा ने इस बात को कारण से रखा है वहां पे. Immediately after preaching the word, तुरंत ही वचन का प्रचार करने के बाद the Bible says बाइबल कहती है they brought a man who was a paralytic patient. लोग एक रोगी को लेकर आए जो कि लकवे का रोगी था. Now watch this. Look at somebody and say, the word of God is the foundation for your healing. किसी को देखकर कहें परमेश्वर का वचन आपकी चंगाई के लिए बुनियाद है. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? जैसा आप ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर की चंगाई आपके शरीर में बहने लगी है. God's healing power has started flowing. परमेश्वर की चंगाई का सामर्थ बहने लग गया Are है. you ready right now? आप तैयार हैं इस वक्त? Something is happening right now in your spirit. कुछ तो हो रहा है इसी वक्त आपकी आत्मा में. Say amen, I receive. आमीन मैं ग्रहण करता हूं. Yes, let's go. Who was carried by 4 men. जिसे 4 मनुष्य उठाकर लाए. Write this down. लिख लीजिए. This is a picture of intercession. देखिए ये चित्र है प्रार्थना मध्यस्थी का. What is intercession? और ये प्रार्थना मध्यस्थी क्या है? Carrying someone to Jesus. किसी और को यीशु के पास उठाकर लाना. Is this blessing you? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? What is intercession? और ये मध्यस्थी प्रार्थना क्या है?
carrying. Now, 4 people carried one person. अब सोचिए इधर 4 व्यक्ति जो एक व्यक्ति को उठा के ला रहे हैं, One person can also carry 4 people. तो एक व्यक्ति भी 4 लोगों को उठा के ला सकता है। That was physical. वो तो शारीरिक था, But in intercession, लेकिन प्रार्थना मध्यस्थी में you can carry the entire village. आप पूरे गांव को उठा के ला सकते हैं। Superman! Hallelujah! सुपरमैन। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Intercession. You can carry your whole ministry in prayer to the Lord. मध्यस्थी प्रार्थना, आप अपनी पूरी सेवकाई को प्रार्थना में प्रभु के पास ला सकते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? बोले मेरे घर में कोई विश्वासी नहीं है, तो क्या हुआ? तुम उन सभी को उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर आ सकते हो प्रार्थना में। हेलो, are you there? साथ में है? Yes. Intercession is important if you have to see miracles happening on a day-to-day basis. मध्यस्थी Please प्रार्थना ध्यान से बहुत ही सुनें। महत्वपूर्ण है। अगर आप रोज दिन ब दिन आशागम होते हुए देखना चाहते हैं तो, If you don't receive this word, अगर आप इस वचन को ग्रहण नहीं करते, you will need it after things when things go worse. तो इसकी आपको जरूरत तब पड़ेगी जब चीजें बदतर हो जाएंगी। कितने लोग सुन रहे हैं? You know, कोई कोई लोग सुनते नहीं, बोले क्या बोल रहे हैं? सर अभी आप मजे मारो। एक बड़े प्रभु के दास ने ऐसा लिखा, some play and then they have to pray, but some pray first and then they get to play. So you choose. तो आप चुनाव करें कि पहले आप खेलना चाहते हैं और बाद में आपको प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी। That may not come out good in Hindi. That's fine. Is anybody listening over here? ये तो समझ रहे You're हैं? distracted. सुनिए, either you pray first and then you play, or either you play and then pray. Your choice. आपका चुनाव है, या तो आप पहले प्रार्थना करें फिर खेलें, या फिर पहले खेलें फिर बाद में जाके प्रार्थना करें। Every day हर दिन you have to carry your family in prayer to Jesus. आपको अपने परिवार को प्रार्थना में यीशु के पास लाना है। Write it down. लिख लीजिए। That is why, as a church, इसलिए कलीसिया के रूप में we have to come together in prayer for the prayer requests that we receive. जो प्रार्थना गरज हमें मिलते हैं, उसके लिए हमें इकट्ठा होना है प्रार्थना मध्यस्थी करने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? There's a mighty prophet in Africa. और अफ्रीका में एक बड़े सामर्थ्य भविष्यवक्ता है, Though he moves in the anointing, हालांकि अभिषेक में बड़े जबरदस्त तौर पे काम करता है, every morning, लेकिन हर सुबह nearly 400 people gather. He is 75 now, that man of God. उनकी उम्र जो है 75 की है, 400, 300 people gather every morning and pray over the prayer requests that come. Cancers are healed, tumors disappear, kidneys are restored, these things happen. And somebody asked him, man of God, you are really, really anointed. And he said, no. He said, my people carry all the people in prayer to Jesus. किसी ने कहा कि परमेश्वर के जन आप बड़े सामर्थ्य, तब उन्होंने कहा नहीं, नहीं। मेरे लोग सभी को जो है, सभी प्रार्थना गरजों को यीशु के पास लेके जाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Every Saturday we have intercessory prayer. हर शनिवार को हमारी मध्यस्थी प्रार्थना होती है। I want you to come. चाहते कि आप लोग आएं। कितने लोग सुन रहे हैं? People have sent their prayer request. लोगों ने We have अपनी- nearly 4,000 plus prayer requests now. लोगों ने अपनी प्रार्थना गरज भारी तादाद में भेजे, 4000 से भी ज्यादा प्रार्थना गरज इकट्ठा हो गए। वो प्रार्थना निवेदन नहीं है, वो उनकी उम्मीद है, उनका सपना है। आपका भी हो सकता है जब हम साथ में मिलकर उस प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु के पास लेके जाएंगे, सर यीशु कहेगा डन, हालेलुया। One man, 4 people in the New Testament, 4 people को हम अकेले उठा सकते हैं, 40 को उठा सकते हैं, 4000 को उठा सकते हैं। Is this blessing you, church? क्या आपको आशीष पहुंचा रही कलीसिया? They brought the people, the man to Jesus. I should not be देखिए। looking at the screen today. I should be just listening to the Holy Spirit. उन्होंने उस रोगी को उठाकर यीशु के पास लाए। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Before this year closes, ये साल खत्म होने से पहले I want to see people being set free financially. देखना चाहते हैं कि लोगों को पैसों के क्षेत्र में बड़ी आजादी मिले, I want to see people set free physically. और देखना चाहते हैं कि लोगों को बड़े तौर पे शारीरिक तौर पे आजादी मिले। These people, ये लोग, ये आदमी बहुत भारी होगा, इसीलिए 4 लोगों की जरूरत पड़ी। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत आदमी, बहुत या तो बहुत अमीर आदमी होगा या तो बहुत भारी आदमी होगा। No, understand what I'm trying to समझिए say. 4 people carrying one man. Today, one person is not ready to carry a husband or daughter or son to the Lord. This person, either they loved this person or this man was a very rich man. That is why 4 people were carrying
him to Jesus. देखिए इसी वजह से हम देखते हैं, 4 लोग मिलकर इस रोगी को उठाकर यीशु के No, पास I don't लेकर know. आए। Yes. Look at somebody and say intercession. किसी को देख रखा है मध्यस्थी Come प्रार्थना। on, loudly say intercession. जोर से कहा मध्यस्थी प्रार्थना। My fifth point, write it down, please. पांचवा मुद्दा। Write it down. Hurry up, hurry up, hurry up. Hurry up. And when they could not come in because of the crowd, they uncovered the roof where he was. And so when they broke through, they let down the man which the paralytic was lying. The fifth point is this: देखिए पांचवा मुद्दा ये है, persistence. Everyone say persistence. दृढ़ता। That's why you need to be on this fast. We have a few days remaining in the fasting. और देखिए इसी वजह से हमें इन उपवास के साथ बने रहना है। बस कुछ ही दिन बचे हैं उपवास के साथ If खत्म होने में। prayer has not been working for you, अगर प्रार्थना आपके लिए काम नहीं कर रही, then combine it with fasting तो प्रार्थना को जो उपवास से जोड़ दीजिए। and say, प्रभु, अगर तू मेरी नहीं सुनता है तो मैं छत तोड़कर अंदर आऊंगा। मैं कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरी माँ बेचारी, उसको एक बार उसको मैं स्क्रिप्चर सिखा रहा था, मैथ्यू 7:7। मेरी माँ बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो हम लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। It's come on now, don't judge me, it's my mother, not yours. Okay. How many of you we can have fun with our mama? अब ऐसे कितने लोग अपने माँ के साथ देखिए मजाक मस्ती करवा। कितने लोग अपनी माँ के साथ मस्ती करते हैं? बाप के साथ नहीं करता है। माँ अवेलेबल है ना मस्ती के लिए। Listen, so we used to have fun with our mama. अपनी माँ के साथ बहुत ही मस्ती। So I was teaching her the word of God. और उन्हें परमेश्वर का वचन सिखा रहे थे। So in Konkani it goes like this. तो कोंकणी में ऐसा होता है। Okay, I'll speak in Hindi so you not understand. Otherwise, it says, खटखटाओ और दरवाजा खोल दिया जाएगा। कितने लोग जानते हैं उस स्क्रिप्चर को? Okay, मैं पूरा नहीं बोलूंगा। खटखटाओ और दरवाजा खोल दिया जाएगा. Now I was teaching in Konkani and somehow my Konkani also did not come properly. किसी तरह से कोंकणी जो वो भी सही तरह से नहीं आई। So my mother said, कि माँ ने कहा, दार आर मार आणि दार फोड. So दार आर मार. दरवाजे पर मारो। जेसू म्हणता दार आर मार आणि दार फोड. यीशु ने बोला दरवाजे पर मारो। I said, no. ने कहा नहीं नहीं नहीं, दार फोडणं काय सर? दरवाजा तोड़ना नहीं है। दार आर मार दार उगते जातले. दरवाजे पे खटखटाओ। Then she asked me, अगर उगते that means if it does not open then what? Then I said, yeah, that's what I didn't think about. खुलता नहीं है तो फिर क्या? दार आर मार आणि दार फोड. I was remembering in the morning. Hello, are you with me right now? Yes, he says, कभी-कभी हम खटखटाते हैं, it does not open. कभी-कभी देखिए हम खटखटाते रहते हैं लेकिन खुलता नहीं है। At that time, उस समय पर don't give up. हार नहीं मानना है। Don't give up. हार मत मानो। I want to tell you, some of you are very close to your miracle. आप में से कुछ लोग अपने आशा के बहुत ही करीब हैं। Some of you are already smelling your miracle. आप में से कुछ लोग आपके आशा Hey, की महक आ रही hallelujah. है। You are already seeing visions about your miracle. अपने आश्रम के पहले दर्शन आप देखने लग गए हैं। Joseph was very close to his miracles. That's why he was seeing visions. यूसुफ अपने आश्रम के बहुत ही करीब था, इसलिए वो दर्शन देख पा रहा Is था। anybody listening over here? सुन रहे He हैं must आप? be 16, 17, 18. In 12 years, he would be the governor of Egypt. Hallelujah. Hey, 12 साल में देखिए वो मिस्र का गवर्नर बना रहा। are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Are you listening right now? ऐसा बोल सकता था ना, सभी ने मुझे खड्डे में डाल दिया, कोई नहीं मेरा। अरे नहीं सर, खुदा ने तेरे लिए रस्सी रखी है, खुदा ने तेरे दुश्मनों को रखा है कि वही दुश्मन जो तुमको खड्डे में डालने वाले थे, वही दुश्मन तुमको बाहर उठाएंगे. Somebody raise your hand and shout hallelujah. I prophesy it will happen in the name of Jesus. ऐसा होगा यीशु के नाम में। You think they are burying you? No, sir. आप सोचते हैं आपको गाड़ रहे हैं? नहीं The जनाब। Lord will do it for you. प्रभु आपके लिए करेगा। Lift your hand and shout your biggest hallelujah of Sunday. अपने हाथ में जोर से चिल्ला हालेलुया। They put him in the pit. उन्होंने उसे गड्ढे में His डाला। own brothers pulled him out. उसके भाइयों ने उसे खींच के बाहर निकाला। People thought they were selling him. और लोगों ने सोचा कि वे उसे बेच रहे हैं। They were transporting him to Egypt. वे दरअसल मिस्र में उसको पहुंचा रहे थे। You don't understand. आप नहीं समझ रहे। He had no money. उसके पास पैसा नहीं था। Free transportation. Come on now. चलिए, आप बोल रहे हैं वो मेरा नाम खराब कर रहे हैं, सर वो आपकी पब्लिसिटी कर रहे हैं. Receive it right now. ले लीजिए इस समय। Receive it right now. ले लीजिए इस समय। जो लोग तुम्हें नहीं जानते थे वो भी जानेंगे. God's wisdom is greater परमेश्वर की बुद्धि महान है than the wisdom of man. इंसान की बुद्धि से। The Bible says the foolishness of God is wiser than the wisdom of man. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की मूर्खता जो है परमेश्वर की बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धिमानी से बढ़कर है। Come on. चलिए, Is this blessing you, sir? Hallelujah. Are you listening right now? Yes. उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बोला नहीं खुल रहा है सर. बोले भीड़ बहुत है और ये लोग तो शाने लोग हैं, जाने भी नहीं देंगे अंदर.
तो बोले ठीक है, हम लोग उस आदमी को ऊपर लेके जाते, ऊपर छत ही खोल दिया उन्होंने। कितने लोग सुन रहे हैं? Look at somebody and say, in Jesus, किसी को देखकर के यीशु में, when you are on the word, जब आप वचन में होते हैं, when you know it is the word, जब आप जानते हैं कि ये वचन है, there is no no. तब कोई ना आपको नहीं मिलेगा। There is no no. उसके बाद There आपको is no ना no. नहीं मिलेगा, कोई ना नहीं There मिलेगा। is a yes and amen. Hallelujah. हाँ और आमीन होगी। Open your mouth. अपना मुख खोलिए। Open your mouth. अपना मुख खोलें। You don't know church. आप नहीं जानते For कलीसिया। the Oasis Act too. You don't know. आप नहीं जानते। You don't know. Many people can. You know, जब तुम successful होते हो सब लोग ताली बजाते हैं. And you are crying. जब रो रहे होते हैं, You are crying alone. आप अकेले ही रो रहे होते हैं। But don't worry. फिक्र मत करें। The Lord stands with you. प्रभु आपके साथ खड़ा होता है। The Lord stands with you. प्रभु आपके साथ खड़ा होता I है। always tell my son, I always tell my family, I tell him, don't talk rubbish. The Lord's angel is with me. हमेशा अपने बेटे अपने परिवार से कहते हैं कि बेटू का बात मत करो, प्रभु का स्वर्गदूत मेरे साथ खड़ा है। And when he was small, he said, Dada, where? छोटे थे पूछते थे, Very Aayega. mischievous fellow he was. Yeah. Dada, it's left or it's right? I said, shut up. I also don't know. I'm not spiritual. If I don't see, I don't see. Some people know left. नहीं मालूम है. नहीं मालूम तो नहीं मालूम. बाजू वाले को बोल, ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं बनना है. नहीं मालूम तो नहीं मालूम. कुछ भी अपना ही ज्ञान बांटने के लिए. अभी मुझे बोलो कि यीशु मसीह कहां पे खड़े, नहीं मालूम मुझे. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन खड़े हैं. इसलिए इतना बोल पा रहा हूं. Praise the Lord. बोलिए प्रभु स्तुति हो। So you see, church, persistence. कलीसिया। I want to encourage you. आपको हौसला बढ़ाना चाहते Today is the 22nd. हैं। आज 22 तारीख है। Barisan. Yeah, so many zones, time zones. Sure. Listen. 8 दिन 9 दिन बाकी है. God can do it for you. परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। I want to encourage you, sir. आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं जनाब। I didn't come here to, yes, मैंने आपको थोड़ा सा डांटा, थोड़ा सा ये किया, लेकिन आपकी भलाई के लिए किया. I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं। God is on your side. God is on our side. परमेश्वर I want to आपकी tell the ओर है। youngsters, नौजवानों से कहना चाहते हैं। spend this time in prayer. इन समयों को आप परमेश्वर की This उपस्थिति 8 बिताएं days, प्रार्थना के this जरिए। 7 days. बोले मैं बहुत बिजी हूं. सर, अगर आप अस्पताल में रहते हो तो क्या करते? क्या करते आप? आपको बुखार आता है तो आप कुछ नहीं कर सकता आदमी. एक मस्कीटो बस खत्म, आदमी गया. ऐसा पब्लिक सेक रही है, कुछ नहीं हो रहा. हेलो, यस, मस्कीटो काम करके गया. 8 days you give to God. 8 दिन बचे हैं, परमेश्वर को दीजिए आप। Pastor, I have a vision. You will enter into 2025 आप 2025 में कदम रखेंगे। with a breakthrough in your hand. आपके हाथ में आशीर्वाद को लेके। आपके हाथों में एक बेदारी आश्चर्य कर्म लेकर आप 24 नहीं 25 में प्रवेश करने वाले हैं. Can I have a good shout and amen, somebody? आमेन सुन सकते हैं इस वक्त। I admire these people. इन लोगों की सराहना करते हैं। I admire these people. इन लोगों की सराहना करते हैं। They were violent in the spirit. वे आत्मा में एकदम हिंसक थे। रास्ते पे कोई भी झगड़ा कर सकता है, कोई भी मारामारी कर सकता है, लेकिन विश्वास की जरूरत पड़ती है आत्मा में लड़ाई करने के लिए. Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें, God is not so weak that he needs you to fight for him. परमेश्वर इतना कमजोर नहीं है कि उसे आपकी जरूरत है कि आप उसके लिए लड़ाई लड़ें। परमेश्वर इतना कमजोर नहीं कि हम उसके लिए लड़ाएं, वो खुद लड़ सकता है. But you have to fight against your flesh. लेकिन आपको अपने शरीर के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। I want to close. समाप्त करेंगे आप। And the Bible says, the Bible last कहता point, and we close. Can I have the band on stage? When Jesus saw their faith, बच्चे बोले जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा, I should not look behind. Okay. Said everyone, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा तो उस लकड़ी son, से कहा, your sins are forgiven. बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। Come on now, hello. सुनिए, यीशु मसीह आपको देखकर आपके विश्वास को देख सकता है क्या?
जब आपको देखता है यीशु मसीह आज देख रहा है, तो उसे क्या दिखाई दे रहा है? एक आदमी जो विश्वासी है या विश्वास में डूब गया है, विश्वास से हट गया है? What does Jesus see? क्या देखता है यीशु? No, don't answer me. Answer yourself. When he looks at you, जब वो आपको देखता है, what does he see? क्या देखता है वो? Answer that question and you'll have your miracle. सवाल का जवाब दीजिए और आपको आशीर्वाद मिलेगा. Look at your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी को देख रहे हैं, पड़ोसी, when he sees us now, जब वो हमें देखता है अभी, what does he see? तो वो क्या देखता है? बाजू देखो, बोलिए, तुम्हारा विश्वास दिखाई देता है. अपने पड़ोसी को बोलिए. That's another teaching on faith. और दूसरा एक शिक्षण है विश्वास पर. विश्वास दिखाई देता है. सब जो बोले विश्वास दिखाई देता है. कैसे विश्वास दिखाई देता है? लिखो, विश्वास कैसे दिखा? बोले विश्वास किधर है? बोले भाग गया. हम उस विश्वास की नहीं बात कर रहे. Now listen. सुनिए, How can your faith be seen? कैसे आपका विश्वास दिखाई पड़ सकता है? The first one, पहला है by your actions. आपके कार्यों के जरिए Faith can be seen विश्वास देखा जा सकता by है. your actions. आपके कार्यों के The जरिए. first one, write it down, by actions. लिख लीजिए पहला, आपके कार्यों के जरिए. James, the book of James says, याकूब की पत्री में लिखा है, faith and it says actions. विश्वास और कर्म, कार्य कितने लोग सुन रहे हैं? Both go hand in hand. दोनों साथ में जाते हैं. कितने लोग सुन रहे हैं? Yes. Second, दूसरा, faith is seen by your words. विश्वास जो है आपके शब्दों में दिखाई देता है. Come on. Hey. अच्छा, you're writing down. आपके विश्वास दिखाई देता है, आपके शब्दों से सुनाई देता है, आपके शब्दों से विश्वास सुनाई भी देता है. मैं कैंसर पेशेंट को देखने गया था. बांद्रा में एक हॉस्पिटल है जहां पर सब होने के बाद उनको रखते हैं. कितने लोग समझ जानते हैं? I don't want to take the name. And I want to visit that person. उस व्यक्ति से मिलने गए. I said, I want to meet Mrs. So and so. इन्होंने कहा मैं इस नाम के व्यक्ति से मिलने आया हूँ. Well, she's gone to meet somebody. I said, excuse me? वो किसी मिलने गई है. तो इन्होंने कहा अरे, I said, she has cancer. He says, we know. उन्हें तो कैंसर हो गया. तो When I went to meet her, जब गए उनके पास, she was chatting with somebody and laughing. I said, I come to meet Mrs. So and so. She said, I'm only that person. I said, you're on the last stage. She said, yeah, I'm on the last stage. And after a few days, I'll be on the bed. But before that, I thought I will pray for others. उन्होंने कहा कि हाँ मैं लास्ट स्टेज पे हूँ. कुछ दिनों के बाद मैं बिस्तर पकड़ लूंगी. लेकिन मैंने सोचा कि इतने दिन है तो मैं किसी के लिए प्रार्थना करूँ. Now, let me tell you the sad part. She passed away. दुखद बात यह है कि उनका देहांत हो But गया. till today, उसका जो चेहरा है मेरे आंखों से मैं हटा नहीं पाया. उसका चेहरा मैं हटा नहीं पाया. विश्वास तुम्हारे कार्यों से दिखाई देता है. विश्वास तुम्हारे शब्दों से दिखाई देता है. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? विश्वास तुम्हारी प्रार्थनाओं से दिखाई देता है. Today I know some of you are down. Some of you want to give up. कुछ लोग हार मानने के गार पर आ चुके हैं. But God is going to see your faith. लेकिन परमेश्वर का विश्वास दिखने जा रहा है. God is seeing your faith. परमेश्वर का विश्वास दिखने जा रहा है. You will say, Lord, I'm down. आप कह रहे हैं प्रभु मैं एकदम मायूस होकर नीचे आ गया. But I'm not out, Lord, because you will lift me up, oh God. Paul says, पौलुस ने कहा, Paul says, people have left me, but I know, Lord, you have not forsaken me. लोगों ने मुझे छोड़ दिया लेकिन मैं जानता हूं प्रभु तूने मुझे त्यागा नहीं है. Hallelujah. Hallelujah. Paul says, in one place the scripture says, in one translation it says, I've been rejected by men, but I know in God I have been accepted. Hallelujah. Speak like that. द्वारा मैं ठुकराया गया हूं लेकिन मुझे पता परमेश्वर ने मुझे अपना लिया है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में.